السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ بھونگ میں معروف زمیندار جام غلام حسین نے اپنے کھمات کی فصل آگ لگا دی اور کہا کہ جب تک گنے کا ریٹ 600 روپے فی من مقرر نہیں ہوتا وہ اسے کسی مل کو فروخت نہیں کریں گے۔ زمیندار نے مل مافیا پر کسانوں کا استحصال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مقامی کسانوں نے حکام سے فوری ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا تاکہ محنت کا مناسب معاوضہ مل سکے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس رینانہ خود میں خوبصورت کلچرل شو کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ۔ جی بالکل، گزشتہ روز پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر کی زیر سرپرستی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس میں ٹینٹ پیکنگ اور فوڈ فیسٹیول 2025 کے تحت ایک شاندار صحت مندانہ ثقافتی شو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس اور النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوا، جو کہ شہدائے فوج و پولیس سے منسوب کیا گیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نہ صرف طلباء کی حوصلہ افزائی تھا بلکہ شہر کی عوام، کمیونٹی اور اداروں کے درمیان رابطے، اشتراک اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانا بھی تھا۔ زرعی یونیورسٹی دیپال پور کیمپس اکاڑا میں ثقافت، کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ایک تاریخی، دلکش، خوبصورت ٹینٹ پیکنگ فیسٹیول، کلچر ڈسپلے، فوڈ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد علاقے میں مثبت ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا، نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا، پنجاب کی روایتی ثقافت کو اجاگر کرنا تھا، جس میں مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ڈاکٹر نازیہ احسان ڈائریکٹر ڈی ایف اے اینڈ یو اے، راؤ محمد اجمل خان سابق ایم این اے، مہر محمد یوسف انچارج سی سی ڈی اکاڑا، چودھری ظفر اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر اکاڑا، رائے محمد یاسین اویسی چیف ایگزیکٹو النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا، سید ندیم مقصود جعفری الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خرد، حاجی عامر چودھری سترا پنجاب، ایم سلیم طاہر تعلیمی اسکالر، شفقت رسول قمر پی ایس او 2 ڈی سی او اکاڑا و دیگر علماء، اساتذہ، وکلاء، سماجی کاروباری، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر 320 گھڑ سوار تند و تیز، چاقو چوبند، پورے جوش و جذبے، چست و چالاکی سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ماہر تصور ہوتے رہے۔ ڈولوں کی تھاپ پر ہزاروں شائقین بھنگڑے ڈالتے اور داد دیتے دکھائی دیتے رہے۔ نوجوانوں کے لیے صحت افزائی کا پیام عطا کے تمام ثقافتی اشیاء کو فوقیت دی گئی۔ پوری یونیورسٹی میں ہر طرف رنگوں کی برسات چھک رہی تھی۔ اختتام پر کامیاب امیدواروں کو نقد رقم، شیلڈز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ ساہیوال میں اسپیشل ٹی وی کی نشاندہی پر فینسی نمبر پلیٹس، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے رپورٹر رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاز گراؤنڈ ساہیوال موجود ہیں۔ جس طرح کے حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق بغیر ہیلمٹ اور فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے، تو ہمارے ساتھ ڈی ایس پی ٹریفک موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ٹریفک پولیس ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے بتائیے۔ جی انشاءاللہ، یہ ہمارے جب سے نئے ڈی پی صاحب آئے ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایک ہفتہ ہم نے ہیلمٹ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، بھرپور کمپین کرنی ہے تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ ہیلمٹ کی اہمیت کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے وہ ہیلمٹ ہوتا ہے۔ تو ایک ہفتہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کل ایک ہفتہ پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو آج ہم نے پھر اس کی انفورسمنٹ سٹارٹ کی ہے جی پی او صاحب کے حکم سے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کافی بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ود ان 1 ویک ہر شہری، ساہیوال کے ہر شہری کے سر کے اوپر ہیلمٹ ہوگا انشاءاللہ۔ جناب ڈی پی او صاحب ساہیوال کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہفتہ جو ہے ہم نے یہ پہلے ان کو انفارم کرنا ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ دوران ڈرائیونگ استعمال کریں۔ اس سلسلہ میں ہم نے ہیلمٹ بھی تقسیم کیے اور اس کے بعد اس میں مختلف چوک سائے میں ہم نے لوگوں کو بذریعہ اسپیکر بتایا بھی اور مساجد میں اعلان بھی کیے کہ آپ ہیلمٹ پہن کر جو ہے وہ دوران ڈرائیونگ سفر کریں۔ تو اب وہ ہمارا ہفتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اب انفورسمنٹ شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم نے زیرو کرنا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن کر آئیں گے۔
DPO शाहीवाल के अहकामात के मुताबिक जो बग़ैर हेलमेट बग़ैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें हैं उनके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा और शहरियों को आगाही भी दी गई है इससे कबल और आज क्रैकडाउन जारी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल ने तरबियती प्रोग्राम में मुंतखब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा जदीद तरीक़े तालीम और बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक तालीम दें ताकि मेयारी तालीम फराहम की जा सके। उन्होंने नौजवान असातिज़ा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने और मज़ामीन के काबिल असातिज़ा के शफ़ाफ इंतख़ाबात की हिदायत की। बादअज़ा कमिश्नर ने DC ऑफिस का दौरा करके सैलाब ज़दगान के कंट्रोल रूम का मुआयना किया और मुतासरीन को माली इमदाद के हुसूल में मुकम्मल सहूलत और रहनुमाई फराहम करने की हिदायत भी की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, ADC रेवेन्यू उसामा मजीद और दीगर अफसरान मौजूद थे। झेलम के इलाके शेख कुरैशा में गलियां टूट फूट और गंदे पानी के जोहर से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मुकामी रिहायशियों ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें देने के बावजूद अदम तवज्जो पर शदीद तशवीश का इजहार किया और अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त झेलम के इलाका शेख कुरैशिया में मौजूद हूँ। ये इलाका अरसा दराज से मसाइल के गिरदार में फंसा हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर और गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला आबादी में गंदे पानी का जोड़ है जो बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। वकीलों के मुताबिक इस इलाके से सुतीली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। इस इलाके की महरूमी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल आबादी में कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, ना ही कोई सरकारी स्कूल, ना ही डिस्पेंसरी मौजूद है। गाँव के तलबा और तलबात कई किलोमीटर दूर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। वकीलों का कहना है कि बेशुमार मरतबा इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों को आगाह किया, लेकिन हमारे मसाइल जूँ के तू हैं। वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी हवेली रखा में स्पेशल टीवी की खबर नशर होने के बाद DDHO अशोक कुमार ने 45 SP के हमरा कार्रवाई करते हुए गांव और शहर के गिरदोनवा में मुतअद्दिद गैर कानूनी अताई क्लिनिक सील कर दिए। कार्रवाई के दौरान अताई डॉक्टर्स भी फरार हो गए जिनके चालान बादअज़ा PHC लाहौर को भेज दिए गए। DDHO ने आवाम से सिर्फ मुस्तन डॉक्टर से इलाज करने और गैर कानूनी तिब्बी मराकज़ से दूर रहने की हिदायत की है। कर दिया मैंने मामला अभी खुलेगा FIR हो गई इसके ऊपर, ये मैं पहले बता देता हूँ, सब सुन रहे हैं। ये अब मैंने सील किया है, सरकारी कंप्लेन गई है, हमारे पास कंप्लेन आई है, मीडिया में भी आई है। अब ये क्लिनिक खुलेगा, ये खुलेगा, ये बिल्डिंग जब्त हो जाएगी। FBR को फ्री में दे दूंगा, ये फ्री में ले लेगा, गवर्नमेंट मुफ्त में ले लेगी। ये 1 रुपये भी किसी को नहीं मिलेगा बाद में। ये मेरी बात है, जेनमेंट माफ़ किया है वो आपका मैटर है, बंदा गलत था हमने सील कर दिया है। कल ये ना कि ना आया नहीं हमारे दादा थी नहीं, मीडिया में इतना वो चला के हमारे पीछे पड़ गया, तुमने माफ़ कर दिया, कहानी ख़त्म कर दी यहाँ पे आके। माफ़ तो इंसान की जान की कीमत है, ये माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होता यार। कम से कम बंदे को उसको लेवल पे ले आओ, उसने गलती की है, गाँव वाले माफ़ कर देते हैं, फिर हमारे पीछे आप आते हो कि आप यहाँ। मैं पहली बार इस गाँव में आया हूँ, इस इलाके में पहली बार आया हूँ, इससे तो काम गलत है ना। जामशोरों में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी से मेन इंडस हाईवे तक मंशियात और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे इशफाक। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरों सोसाइटी में, जहां पर मंशात और बदअमनी के खिलाफ सिंध पर तरक्की पसंद पार्टी के जानिब से रैली निकाली गई है। आइए सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं से बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं ये रैली किस हवाले से है। जी सर, आज सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी में जो रैली निकली है सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी देखें, हमारी जो रैली का मकसद था वो यही था कि अमन अमान का जो है जामशोर में बहुत ख़राब है। कोई शागिर्द महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है, कोई बच्चा महफूज नहीं है, कोई रास्ता रोड महफूज नहीं है। ये डाके, ये चोरियाँ, ये जो डकैत हैं दिन दनाए फिरते रहते हैं। पुलिस का पुलिस का एक बड़ा काम है, बड़ा रोल है। उनको ये पता चल जाता है कि कोयटा से मंशियात की गाड़ी चली है, उसको पकड़ना है,
लेकिन उनको घर में जो डाका लग रहा है उन चोरों का पता नहीं चल रहा। आप देखें इधर कुछ लोगों को गाड़ियां मंशियात फरोशों ने मारा है। हम ये इस बात में हैरान है कि हमारी पुलिस को माशाल्लाह इतना पता होता है कि ये कोयटा से कराची से मंशियात फरोश की गाड़ी आ रही है, लेकिन उसी रोड पे एक कल हफ्ता हो गया है, एक बच्चा यूनिवर्सिटी का उज़ैफा पठान, उसको दिन दिहाड़े मार दिया, डकैतों ने मार दिया, उसके कातिल नहीं पकड़े लेकिन गाड़ियां पकड़ रही हैं। मंशियात फरोश ये सरेआम मंशियात चला रहे हैं। केबिनों पे जाएं, छोटे बच्चे जाएं, आप बच्चे भेजें, उनको मंशियात मिल रही है। वो मंशियात फरोश पुलिस के सहूलतकार बने हुए हैं, वो डाकुओं के भी साथी। लाजमी जब नशा आम हो गया है, नशा लोग करते हैं, फिर वही उनको जब पैसे नहीं होते वो डाके मारते हैं, लोगों को मारते हैं, और ये सारा धंधा मंशियात फरोशों का है। हम बोलते हैं फिल फोर मंशियात फरोशी बंद करें। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के केबिनों पे बैठे हुए हैं सरेआम, जैसे वाना वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं, जैसे कोई अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कोई शरीफ शिकायत लेके जाए पुलिस उसको पूछती नहीं, और कोई मंशियात फरोश जाए तो ऐसे जो अपनी उठकर उसको सीट देता है। रानीपुर में स्पेशल टीवी के रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी के मामू के स्वयं की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कुरान ख़वानी और मजलिस-ए-अज़ा भी शामिल थी। दस्तारबंदी के मौका पर आबिद अली अंसारी को दस्तार पहनाई गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, सहाफ़ती बरादरी, रिश्तेदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम की वफ़ात पर इलाके में सोग की फ़िज़ा कायम है और मुख्तलिफ समाजी और सहाफ़ती हलकों ने सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। मेलसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मकामी सतह पर अहम तंजीमी तब्दीली करते हुए मलिक नज़ीर अहमद मुल्तानी को सिटी सदर और शेख मसूद ज़हीर को सिटी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। नौमुंतखब ओहदेदारान ने पीपल्स पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत बनाने और मुनज़्ज़म राब्ता मुहिम चलाने का आज़म ज़ाहिर किया। रहीम यार खान में बस्ती मोथा के मकीनों ने वापडा मीटर रीडर शाहिद अवान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो बिजली मुनक़ता करके रिश्वत वसूल करता है और झूठे मुकदमात भी दर्ज करवा रहा है। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से शफाफ इंक्वायरी और बिजली फौरी बहाल करने का मुतालिबा किया। मीटर रीडर शाहिद अवान ने इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि उसने कभी भी रिश्वत नहीं ली। मेरा नाम से मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं बस्ती मोथा रहायशी जमालदीन वाली तो हूँ। शाहिद अवान ने असें तो 4 लाख रुपए घिनते असें ते झूठे FIR करा दिते ने ते असें को ब्लैकमेल भी की खरे। हुंदे बावजूद असें को इहो कुछ कहने भी मैं को बे पैसे जो तो मैं सुने FIR ख़त्म करा दे सा। हुंदे बावजूद असें ते बार वापटा मुलाजमीन दे जेके प्राइवेट बंदे दे थ्रू असें पैसे की देने ते असें को परेशान भी की कन सारी बिजली भी कटी जी है सर। असें दी अपील है SDO से बिजली भी कटी गई है तो असें को खाम बकायदा परेशान भी की आए रोज़ सारी मखदूम साहब को अपील है कि असें नाल कोई तामन किता वने असें को परेशानी तो शहर में तो सारी जांच रही वने। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल।